Good morning, friend. Welcome back to our YouTube channel of Gyan Manjari Modern English School. Today we are going to start chapter number 2, Animals and Human Beings. Yes, in previous lecture we have done text exercise question number 2, 3 and 5. Question number 4. Yes, question number 4 में हम क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके थे. आज हम क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. Answer the following questions. B. How is the backbone? How is backbone of human beings different from that of other animals. Other animals. How is the backbone of human beings? Human beings की backbone कैसे डिफरेंट है दूसरे एनिमल से? इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि कैसे हमारी जो बैकबोन है ह्यूमन बींग्स की वो डिफरेंट है. ओके, फर्स्ट आंसर इज the backbone the backbone of human beings can bend forward backward and sideways. Okay, so they can backbone of human beings can bend backward, forward and sideways. इसलिए so they bend. So
they can vent or stew easily. Next, C. What do we communicate to other bees by doing a kind of dance. What do bees communicate to other bees by doing kind of dance? Answer. Bees do a kind of dance. Bees do a kind of dance to inform other bees here in which direction in what form and how much juice is available. Juice available. Okay, what do the bees communicate to other bees by doing kind of dance? बीज do a kind of dance, एक प्रकार का डांस करके दूसरी बी को इन्फॉर्म करती है कि वेयर कहाँ और किस डायरेक्शन में, किस फॉर्म में और कितना जूस अवेलेबल है. ओके स्टूडेंट, नोट डाउन स्टूडेंट. Have you written, student?
Now we will do next question, question number E. Question number D. How does the well-developed brain DEVELOPED develop that means viksit brain of human beings help them how did the well-developed brain of human beings help them? Answer. इधर से लिखेंगे द वेल डेवलप्ड ब्रेन, इधर आप क्वेश्चन से ही आप लिख सकते हो द वेल डेवलप्ड ब्रेन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स human beings help them to think reason out and do many things that other animals cannot do, जिसको other animal नहीं कर सकते, that other animals cannot do. Okay, the well-developed brain of human beings help them, उनको help करता है, उनका जो brain develop होता है human beings का, उन्हें क्या help करता है? Think, to think, then reason out, सोचने में और किसी भी रीजन को निकालने में उपाय, उसका तरीका निकालने में कैसे ये काम किया जाना चाहिए, रीजन आउट एंड डू मैनी थिंग्स, और भी कई कार्य करने में, that other animals cannot do, जबकि दूसरे एनिमल ऐसा नहीं कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट लास्ट वन इज
लास्ट क्वेश्चन है आपका ई, क्वेश्चन नंबर ई, हाउ इज a newborn human baby different from a newborn deer. न्यूबॉर्न डियर कैसे? न्यूबॉर्न बेबी जो है डिफरेंट है, अलग है न्यूबॉर्न डियर से, ये आपको अब लिखना है। न्यूबॉर्न बेबी a newborn human baby is extremely helpless and has to be taken care of for a long time. Long time. Okay, newborn human baby extremely helpless. Okay, बहुत अधिक helpless होते हैं and has to be taken, इसलिए हमको उनकी लॉन्ग टाइम का क्या करनी पड़ती है? देखभाल करनी चाहिए। ओके, व्हाट ये रफ करते स्टूडेंट। A newborn deer ये fawn head to stand up and run. And run within minutes. Within minutes. ओके, इसका आंसर यहाँ भी है। ओके, आंसर ई, आंसर ई, ई का ही आंसर है ये।
आप भूल जाओगे ना। आंसर की का ए भी है और यहाँ भी आंसर ई है। ओके, you want your on head and stand up and run within minutes of being born to avoid being eaten up by tigers, or lions. Okay, newborn baby has to stand up and run within minutes of being born. Born के कुछ ही समय में, ओके, कुछ ही मिनटों में वो क्या करता है, खड़ा हो जाता है और दौड़ने लगता है। किसकी डर से? उसे किसके? लायन और टाइगर के द्वारा खाए जाने का डर होता है कि वो उसे खा लेगा। इस कारण से कुछ ही मिनट में वो क्या होता है, जन्म के कुछ ही मिनट बाद खड़े होकर वो दौड़ने लगता है। बट ऐसा न्यूबॉर्न ह्यूमन बेबी के साथ नहीं है। न्यूबॉर्न ह्यूमन बेबी इज एक्सट्रीमली हेल्पलेस एंड हैज टू द टेकन केयर ऑफ फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसलिए हमें उनकी लॉन्ग टाइम तक केयर करनी चाहिए। नोट डाउन स्टूडेंट। Today our chapter is over. Okay, now we will start new chapter, chapter number 3, parts of a plant and their functions. Chapter 3, parts of a plant and their functions. And their functions. In previous class you have already learned parts of the plant. Yes? First of all, we will start characteristics of plant. Plant के अंदर क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं? Do you know? There are over 3,75,000 different types
ऑफ प्लांट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में कितने टाइप्स के प्लांट हैं? 3,75,000, जो कि हमने और आपने किसी ने भी इतनी वैरायटी के प्लांट्स नहीं देखे हैं। प्लांट क्या होते हैं? प्लांट में दैट इज क्वाइट एंड बिग नंबर। ओके, न्यू प्लांट आर बीइंग डिस्कवर एवरी डे। अभी इस समय क्या है, न्यू प्लांट को हम डिस्कवर कर रहे हैं। ओके, प्लांट कैसे होते हैं? हर शेप में होते हैं, साइज में होते हैं, कलर में होते हैं, डिफरेंट साइज, कलर एंड डिफरेंट साइज, बिग, स्मॉल। यस, तो फर्स्ट एल्गी इज कैसा होता है? एल्गी प्लांट होता है बहुत ही स्मॉलेस्ट प्लांट है। एल्गी इज स्मॉलेस्ट प्लांट। इसको कैसे देख सकते हैं? दैट इज ग्रो माइक्रोस्कोप। इसे हम भी कैन सी माइक्रोस्कोप, हम इसे माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। ओके, डकवीड इज वेरी स्मॉल प्लांट। ओके, इट दैट ग्रो इन वाटर, जो कि कहाँ ग्रो होता है? पानी में ग्रो होते हैं। ओके, सो स्मॉल दैट अराउंड 25 ऑफ देम कैन फिट ऑन आवर फिंगर नेल्स। हमारी फिंगर नेल्स जो करते हैं वो कितने? फिंगर नेल्स से 25 ऑफ देम कैन फिट, छोटे छोटे से होते हैं। टॉलेस्ट ट्री कैन बी ओवर 80 मीटर हाई, टॉलर देन, उन्होंने कहा है 25 स्टोरी बिल्डिंग। हमारी जो स्टोरी बिल्डिंग होती है 20-25 की, उससे यदि कंपेयरिंग करें तो हमारे जो प्लांट होते हैं वो 80 मीटर हाई होती है। हाइट ऑफ ट्री 80 मीटर की। ओके स्टूडेंट, नाउ ओके वियर, अब स्टूडेंट वियर कैन ग्रो प्लांट, कहाँ कहाँ प्लांट ग्रो हो सकते हैं? तो प्लांट कैन ग्रो ऑन लैंड, इन वाटर, इन वेरी हॉट डेजर्ट एंड फ्रीजिंग कोल्ड एंड ऑन टॉप ऑफ वेरी हाई माउंटेन। प्लांट जो है लैंड पर ग्रो हो सकते हैं, पानी में ग्रो होते हैं और हॉट डेजर्ट में ग्रो होते हैं, इन फ्रीजिंग कोल्ड एंड टॉप ऑफ वेरी हाई माउंटेन पर भी ग्रो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैक्टी कैन ग्रो वेयर देयर इज वेरी लिटिल वाटर। जहाँ वहाँ पर थोड़ा पानी होता है वहाँ पर कैक्टी प्लांट ग्रो हो जाता है। ओके, देयर थिक स्टेम एंड ब्रांचेज स्टोर वाटर। उनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ही थिक होती है और ब्रांचेज जो कि स्टोर कर लेते हैं पानी को, जिसमें वो क्या करते हैं? पानी को स्टोर करके रखते हैं। ओके, डेजर्ट प्लांट ग्रो इन वेयर डेजर्ट लैंड में ग्रो होते हैं। नेक्स्ट इज स्नोई माउंटेन, दैट इज एल्पाइन। ओके, एल्पाइन पॉपी ग्रो इन स्नो माउंटेन। Alpine poppy grow in snowy mountain. Okay student, the ground where is protected from the wind. And lotus grow in water. कहाँ grow होते हैं lotus? पानी में। There are, next point is third, there are plants that live and die in 1 year. 1 year मतलब means annual. In 2 years, when you end some plant life for many years. ओके, क्या होती है? कुछ प्लांटों की, सभी प्लांट जो होते हैं डाई होते हैं, बस कुछ प्लांटों की लाइफ क्या होती है? 1 साल 2 ईयर्स की होती है। कुछ प्लांटों की जो वाइल्ड लाइफ होती है वो क्या होती है? 4 ईयर्स की होती है। एंड कुछ हमारे लॉन्ग टाइम के लिए 100 ईयर्स की भी होती है। ओके, प्लांट कैन मूव बूडी स्टेम एंड सॉफ्ट स्टेम। क्या होती है? प्लांट की जो स्टेम होती है के पास बूडी स्टेम होती है और सेप्टो स्टेम होती है। फॉर एग्जाम्पल बनाना प्लांट हैव सॉफ्ट स्टेम। यस, टेमरेंट प्लांट हैव स्मॉल लीव्स। यस, एंड मैंगो ट्री, जामुन ट्री, बनियन ट्री हैव strong and woody stems. Okay, plant can be flowering and non-flowering. प्लांट को कैसे हो सकते हैं? फ्लावरिंग में किसी प्लांट में फ्लावर आता है और किसी प्लांट में फ्लावर नहीं आते, नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। अब अंडरस्टैंड क्या करेंगे?
plant. A plant has two main parts. A plant has two main parts. फर्स्ट रूट सिस्टम. कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं. फर्स्ट रूट सिस्टम, सेकंड पार्ट शूट सिस्टम. रूट सिस्टम, सेकंड पार्ट क्या है? शूट सिस्टम. Okay, source system and root system. So what is root system, student? The part that grow under the ground is called root system. Yes, the part of the growth above the ground called the shoot system. Okay. First, the part that grows under the ground called the root system. Next, second, shoot system, the part that grows above the ground, ऊपर के पार्ट में जो होता है above the ground. Called the shoot system. Okay. Part of a plant. A plant has two main parts. कितने पार्ट होते हैं? दो. फर्स्ट root system, second part shoot system. Okay. What is root system, student? The part that grows under the ground called root system. Okay. The part that grows above the ground called the shoot system. प्लांट का जो पार्ट हमारा क्या होता है? अंदर, ग्राउंड के अंदर होता है, उसको क्या कहते हैं? रूट सिस्टम कहते हैं. और प्लांट का जो पार्ट हमारा ग्राउंड से ऊपर होती ओर होता है उसे शूट सिस्टम कहते हैं. ओके स्टूडेंट, नोट डाउन स्टूडेंट. We will understand parts of the plant and their functions and types of the roots in next video. Okay students? Homework note down.
number or write question answer. Write question answer B to E. ये तो प्रीवियस वीडियो में कर चुके थे हम लोग। ए बी टू ई आप इस वीडियो में किया है। राइट क्वेश्चन आंसर बी टू ई in your notebook. One time. Write question answer B to E in your notebook one time. टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 4 है आपका ये। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।